سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ چمن کی پھولوں کی مسکان، چمن کی پھولوں کی مسکان، یہاں کی ہریالی کھلیان، میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے بھول جاؤں۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ میرا رام رحیم کا میل، ذرا سبحان اللہ وغیرہ بھی کہا لو کہ ان سب کے جائے۔ بولیے سبحان اللہ کم سے کم، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار آپ لوگ ذرا آہستہ سے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے آہستہ سے ماشاءاللہ، ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کو آہستہ اور زور کا مطلب اچھی طرح پتا ہے، ایک بار پورا مجمع اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جو بغل میں سوئے آپ ان کو ذرا جگہ دیجئے، غلطہ دے کر کے ذرا تھوڑا سا، تاکہ وہ اصل دیکھیے ان کو جو نعت نبی پڑھنے کے لیے بلایا گیا ابھی، تو آپ کے اندر جو نیند کا وائرس بھر چکا ہے ان کو کاٹنے کے لیے، لیکن جو ہے یہ وائرس کٹ نہیں رہا ہے، ذرا آپ ان کو جگہ دیں کیونکہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ لوگ اگر بھر دن ہل چلاتے ہیں اس میں تھکتے نہیں، لیکن آپ یہاں پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے، اس لیے آپ سے گزارش ہے علماء کرام کا یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کا اچھی طرح بیان ہو، یہ اچھی بات نہیں، ذرا ایک وقت نہ لگائیں۔ انشاءاللہ اگلے مرتبہ اگر جلسہ ہوگا تو یہ کنوینر جلسہ سے انشاءاللہ کہوں گا کہ وہ تکیہ کا بھی انتظام کر دے، گدے کا بھی، تب انشاءاللہ سوئیے گا۔ یہاں پر کچھ انتظام نہیں، اس لیے آپ جو ہے بیٹھ کے سنیے اچھی طریقے سے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ پڑھیے ماشاءاللہ وسیم صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ وہ میرا رام رحیم کا میل، وہ گوٹے اور گڈیا کا کھیل، وہ اپنی چھوٹی موٹی ریل، وہ اپنی چھوٹی موٹی ریل، وہ اپنا کرکٹ کا میدان، میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے بھول جاؤں۔ چمن کی پھولوں کی مسکان، یہاں کی ہریالی کھلیان، میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے بھول جاؤں۔ اور بہترین اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ محبت کی ہے جو پہچان، محبت کی ہے جو پہچان، وہ تاج محل کا عالی شان، محبت کی ہے جو پہچان، وہ تاج محل کا عالی شان، ہمارے لال قلعے کی آن، ہمارے لال قلعے کی آن، ترنگا میرے وطن کی شان، میں کیسے بھول جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کیسے بھول جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، قومی ایکتا زندہ باد، قومی ایکتا زندہ باد۔ ماشاءاللہ اسی طریقے سے آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں، الحمدللہ پروگرام اچھی طرح چلے گا۔ پڑھیے ماشاءاللہ۔ محبت کی ہے جو پہچان، وہ تاج محل کا عالی شان، ہمارے لال قلعے کی آن، ہمارے لال قلعے کی آن، ترنگا میرے وطن کی شان، میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے بھول جاؤں۔ چمن کی پھولوں کی مسکان، یہاں کی ہریالی کھلیان، میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے بھول جاؤں۔ اور یہ بن جو پیش کر رہا ہوں، ہمارے علماء کرام نے کیسے قربانی کی ہے، شیخ ملائلہ فرمائے ارشاد ماشاءاللہ جزاک اللہ، کہ سر سید نہرو کا نام، شیخ ملائلہ فرمائے علماء کرام نے سید نہرو کا نام، کہ سر سید نہرو کا نام، حسین احمد مدنی کا کام، وقاسم نانوتوی کا نام، کہ سر سید نہرو کا نام،
حسین احمد مدنی کا نام، وقاسم نانوتوی کا نام، یہاں پہ رام یہاں گھنشیام، یہاں پہ رام یہاں گھنشیام، مجاہد و ٹیپو سلطان میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے بھول جاؤں، چمن کی پھولوں کی مسکان، یہاں کی ہریالی کھلیان، میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے بھول جاؤں۔ اور پردور سرزمین کا یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں جہاں جلسہ ہو رہا ہے، قیصر علی رانا صاحب شعر دعائے دعا۔ یہ برگوں نوحہ کا ہماری شان، یہ برگوں نوحہ کا ہماری شان ہے، اس پر دل و جاں قربان، یہ برگوں نوحہ کا ہماری شان ہے، اس پر دل و جاں قربان ہے، اس کی بس ایک ہی پہچان، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما دانشوران قوم، معطر حضرات علماء کرام، اور خصوصاً صوبہ مہاراشٹر سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی اور میرے استاد محترم، میرے مشفق اور مربی حضرت مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی بستوی، استاد حدیث و تفسیر، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ مہاراشٹر، آج میں جو کچھ ہوں انہی کی مرہون منت ہوں، اور انہی کے بدولت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت اور جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، آپ لوگ مغرب بعد سے اب تک اپنے دماغ اور اپنے میموری کو فل کر چکے ہیں، اور بہت سارے شعراء کلام کے اشعار سے آپ مستفیض ہوئے، بہت سارے علماء کرام کے بیان سے آپ مستفیض ہوئے۔ میں نے ایک مختصر سی آیت جو بہت مشہور اور معروف ہے اور ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، اس ضمن میں چند لمحہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، دعا کیجئے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ یہاں کے منتظمین نے بہت خرچ کر کے یہ جلسہ منعقد کیا، لیکن دکاندار اور دکان کے پاس اور روڈوں پر، سڑکوں پر، اور آپ کے بینر میں لگا ہوا ہے مغرب بعد تا فجر، تو یہ فجر تک جلسہ ہو رہا ہے، تو آپ روڈوں پر، سڑکوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی مولوی کو پریشان کرنا ہے، اسی لیے آپ نے لکھ دیا ہے فجر بعد، اور آپ چائے، پان، دکان
दुकान इधर उधर पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि मौलवी साहब को खाली परेशान करना है, भर रात उनको जगा के रखना है और वो बकबक करेंगे और हम आराम से सोएंगे या दुकानों पर खड़े रहेंगे और वहां से हम चुस्की और चुटकी लेंगे कि कौन कैसी तकरीर कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। अगर आपके अंदर जलसे की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, अगर आपको कुरान और हदीस से मोहब्बत है तो आप दुकान को छोड़ दीजिए। और मैं दुकानदारों से कह रहा हूं कि आप दुआ के बाद अपनी दुकान को खोल के रखेंगे ताकि ये हजरात जो दुआ करेंगे, दुआ के बाद उठेंगे तो आपकी दुकान से खरीदारी करेंगे। इसलिए मैं तमाम दुकानदारों से कह रहा हूं और तमाम सामीईन से, आइए रोडों पर सड़कों पर जो नज़ारा कर रहे हैं नाज़रीन से कह रहा हूं कि आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, नज़ारा करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए आप जलसागाह में तशरीफ ले आइए। हज़रात गिरामी, बहरहाल एक बात थी, मैंने कह दिया। मैंने जो आयत करीमा तिलावत किया है ये जुमे के रोज हर जुमे को दूसरे खुतबे के आखिर में ये आयत पढ़ी जाती है। आज तक हमने गौर किया कि ये आयत क्यों पढ़ी जाती है। इस मजमे में से कोई एक आदमी खड़े होकर के बतला दे, आलिम के अलावा कि इस आयत की पढ़ने की वजह ये नहीं बता पाए। वजह यह है कि हमारा तदब्बुरे कुरान पर गौर करने का जज्बा खत्म हो चुका। आज हमने कुरान को तावीज वाली किताब, कुरान को हमने तेल और पानी पर दम करने वाली किताब, कुरान को हमने मुर्दों पर, मय्यत पर पढ़ने वाली किताब समझ लिया। ये कुरान सिर्फ तावीज बनाने के लिए, कुरान सिर्फ मुर्दों पर पढ़ने के लिए, कुरान तेल और पानी पर दम करने के लिए नहीं है। मैंने सिर्फ का लफ्ज लगाया, यानी सिर्फ मुर्दों पर पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ तेल और पानी पर दम करने के लिए नहीं है, सिर्फ तावीज बनाने के लिए नहीं है, इन सब चीजों के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा अमल करने के लिए। आप सब ईमान लाए हैं अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, किताबुल्लाह। एक मोटी सी बात, हमारा कुरान पर कितना अमल हो रहा है, मोटी सी बात बता, क्या आप ईमान लाए हैं अल्लाह पर, किताबुल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं। आप किसी मौलवी पर ईमान नहीं लाए, किसी मुफ्ती पर ईमान नहीं लाए, किसी आलिम और हाफिज पर ईमान नहीं लाए, किसी मुकर्रिर पर ईमान नहीं लाए, किसी मुहद्दिस पर ईमान नहीं लाए, किसी मुफस्सिर पर ईमान नहीं लाए, बल्कि आप ईमान लाए हैं अल्लाह पर, आप ईमान लाए हैं किताबुल्लाह पर, आप ईमान लाए हैं रसूलुल्लाह पर। जब आप ईमान लाए हैं रसूलुल्लाह पर तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर से दाढ़ी की सुन्नत को कभी अमल नहीं किया। ये कुरान पे अमल हो रहा है, देख लीजिए कितने लोग दाढ़ी रखते हैं और कितने लोग दाढ़ी को उस्तुरे से जाके साफ करते हैं। एक मिसाल से समझिए, दाढ़ी वाले ये बुजुर्ग अभी हमारे सामने बैठे हैं, इनकी दाढ़ी में कोई शख्स चप्पल लगा दे, ये बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, लेकिन ये जवान हो जाएंगे और उसको क्या हाल कर देंगे आप समझ सकते हैं। क्यों? चेहरे पर दाढ़ी है और दाढ़ी में तुम चप्पल लगा दिया। सुन्नते रसूल से मजाक करते हो और सुन्नते रसूल की तौहीन करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये दाढ़ी रखना सुन्नत है, ऐसी सुन्नत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर
से इस सुन्नत को कभी जुदा नहीं किया। और इस सुन्नत में अगर कोई चप्पल लगा दे, चेहरे पर सजी हो और चप्पल लगा दे तो उसका खून पी लेगा। लेकिन अफसोस की बात है, जो लोग दाढ़ी कटाते हैं नाई की दुकान पे जाके, तो उस दाढ़ी के बाल को नाई बेहतरीन डब्बे में पैक करके नहीं रखता है। देखा है कभी रखते हैं? वही चप्पल उसी गंदे चप्पल से, जिस चप्पल से वो बैतुल खाला जाता है, जिस चप्पल से वो पेशाब करने के लिए जाता है, उसी चप्पल से आपके दाढ़ी के बाल को वो रौंदता है और आप उस पर पैसे भी खर्च करते हैं। बोलिए, कुरान पे अमल हो रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो रहा है? आज सब आदमी हाथ उठा के बोलिए कि इंशाअल्लाह दाढ़ी पर उस्तरा नहीं लगाएंगे। जवानों को भी कह रहे हैं, खाली बूढ़ों को नहीं कह रहे, जवानों को भी कह रहे हैं। जो जवान है उनको भी कह रहे हैं, सब आदमी हाथ उठा के कहिए, जवान सब कहिए, सब आदमी, तब आपका जलसा कामयाब होगा। दाढ़ी वाला तो काहे के लिए उठा रहे? जो दाढ़ी नहीं रखे हुए वो उठाइए। अरे भाई, आप लोग फंसे नहीं हैं? आइए हाथ बोलिए। असल जिनकी शादी नहीं हुई वो हमारे उठाए या ना उठाए। जिसकी शादी नहीं हुई है वो अगर वो दाढ़ी रख लेंगे तो उसे खूबसूरत बीवी मिलेगी। देखिए, लखनऊ वाले ने पटने वाले को एक शेर लिखा, बहुत मशहूर है। लखनऊ वाले ने पटने वाले को कहा कि पटने वाले से कह दो कि आंचे बयां, पटने वाले से कह दो कि आंचे बयां, दाढ़ी बोतू को हुआ करती है, शेरों को कहा। ये लखनऊ वाले ने कहा। तो पटने वाले ने जवाब दिया लखनऊ वाले को कि लखनऊ वाले से कह दो कि आंचे बयां, लखनऊ वाले से कह दो कि आंचे बयां, दाढ़ी मर्दों को हुआ करती है, औरतों को कहा। देखा आपने कभी किसी के, भाई हिंदुस्तान की औरत है जिसको दाढ़ी नहीं होगी, या बांग्लादेश की औरत है तो उसको दाढ़ी होगी? नहीं। अल्लाह ने पूरी दुनिया की औरतों को दाढ़ी पर बाल नहीं किया, और अल्लाह ने मर्दों के दाढ़ी पर, पूरी दुनिया के मर्दों के दाढ़ी पर अल्लाह ने बाल दिया है, दाढ़ी की सुन्नत दिया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये आयत मैंने जो पढ़ा, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये आयत इतनी मशहूर आयत है कि हर जुमे को आप अपने इमाम साहब से दूसरे खुतबे के आखिर में सुनते हैं। लेकिन आज तक हमारा दिमाग इमाम की गलतियों पर हमारा दिमाग जाता है। इमाम खुतबा ऐसे पढ़ता है, इमाम साहब नमाज ऐसे पढ़ाते हैं, कभी नमाज लंबी कर देते हैं, कभी नमाज छोटी कर देते हैं, कभी ये सुन्नत नहीं पढ़ते, कभी कपड़ा इनका बहुत उम्दा है, गाड़ी पर चढ़ने लगे, जब से यहाँ आए तो गाड़ी ले लिया, ये सब पर नजर जाती है। लेकिन इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं जुमा के रोज, ये हर मर्तबा हर जुमे को हम सुन रहे हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा। लेकिन आज तक मेरे ज़हन में, हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि हम इमाम साहब से जाकर के सवाल करें कि इमाम साहब, कुरान मुक़द्दस में 6666 आयतें हैं, कुरान में 114 सूरतें हैं, आप इसी आयत करीमा की तिलावत क्यों करते हैं, दूसरी आयतों की तिलावत क्यों नहीं करते? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उलमा ने लिखा है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो खलीफतुल मुस्लिमीन सानी है, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर उन्होंने हुकूमत किया, और इतने बड़े बादशाह, उनके कपड़े पर एक रिवायत के मुताबिक 70 पैबंद लगा हुआ होता था। चिप्पी, पैबंद यानी चिप्पी, समझ रहे हैं ना?
में चिप्पी या पैबंद उर्दू में। और एक रिवायत के मुताबिक 17 पैबंद लगा हुआ था। उस खलीफतुल मुस्लिमीन सानी ने, जिनके इंसाफ का ये आलम था, जिनके अदल का ये आलम था, जिनके रोब व दबदबे का ये आलम था, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मशहूर वाकया है, हजरत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाम की तरफ रवाना फरमाया था। जब हजरत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद अक्सा के गेट पर पहुंचे तो ईसाइयों ने, उनके उलमा ने, उनके पादरियों ने कहा कि हम तुम्हारे शहंशाह के, तुम्हारे बादशाह की कुछ अलामतें अपनी किताब में पाते हैं और हमने उसको पढ़ रखा है। अगर वो अलामतें, वो निशानियां अगर हम तुम में देख लेते तो मस्जिद अक्सा बगैर किसी मुज़ाहमत के तुम्हारे हवाले कर देते, लेकिन वो निशानियां हम तुम में नहीं पा रहे हैं। हजरत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसको फातिह शाम कहा जाता है, उन्होंने चिट्ठी लिखा और एक कासिद को रवाना किया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब वो कासिद पहुंचा चिट्ठी लेकर के, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सवारी है, 2 आदमी है, यानी एक गुलाम को साथ में लिया और सवारी पर सवार होकर के रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम दोनों आदमी सवारी पर सवार हो जाते हैं तो सवारी पर जुल्म हो जाता है। अगर हम दोनों आदमी पैदल चलते हैं तो हम दोनों के ऊपर जुल्म हो जाता है। अगर हम तुमको सवारी पर बैठा देते हैं तो मेरे ऊपर जुल्म होता है, और अगर तुम को सवारी पर बैठा देते तो मेरे ऊपर जुल्म होता है, और मैं सिर्फ सवारी पर बैठता हूँ, तुमको पैदल ले जाता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सवारी पर भी जुल्म ना हो, तुम्हारे ऊपर भी जुल्म ना हो, मेरे ऊपर भी जुल्म ना हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, आज ये छोटा सा मुल्क नहीं, आलिमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ये तरह तरह के उन्वाना, कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस, ये तरह तरह के जो इजलास होते हैं, अगर इस आयत करीमा को हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ये समाज सुधार, ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, इस्लाह मुआशरा और तालीमी बेदारी, दीनी बेदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत इस बात की है कि हमें इस आयत को समझ लें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझा और पूरी उम्मत को समझने के लिए अपने जमाने में तमाम आइम्मे किराम को चिट्ठी लिख करके कहा था कि जुमे के रोज इस आयत करीमा की तिलावत की जाए, और आज तक उस चिट्ठी पर अमल हो रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि हर जुमे को इस आयत करीमा की तिलावत की जाए। एक रिवायत में है, हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी है। एक है उस्मान गनी, बहुत मशहूर है। आप Nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. अब रहा के लश्कर की समझो मौत आई है, कि अब रहा के लश्कर के अब रहा के लश्कर के समझो मौत आई है, समझो मौत आई है। चोंच में परिंदों ने, चोंच में परिंदों ने कंकड़ी उठाए है, चोंच में परिंदों ने। और ये शेर बतौर खास मुलाजा करें कि सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी,
सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी, कि सोचता हूँ रातों को सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी, कैसे नींद आएगी। रे बस मुफलिसी की चादर है, रे मुफलिसी की चादर है, और बेबस मुफलिसी की चादर है, बेबसी की चटाई है। सोचता हूँ